With faith, discipline, and selfless devotion to duty, there is nothing worthwhile that you cannot achieve. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Myself, Mayam Khan, Assistant to HR Manager. I'm going to host this result announcement ceremony for Voice of Pakistan Milli Song and Speech Contest. First of all, I cordially welcome the President of PRS and respected judge of Speech Contest, Syed Hasib Haider Naqvi, and all the audience in this ceremony. Thanks for joining us. Let us start the session formally by Tilawat-e-Quran Pak. For this, I would like to call Maha Ali to recite some verse from Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. जज़ाकल्लाह। खुदा का जिक्र करे और जिक्र मुस्तफ़ा न करे, हमारे मुंह में हो ऐसी जुबान खुदा न करे. So for this, I would like to ask Ahmed Nazir क्यों नाते मकबूल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाए. Assalamu alaikum. Am I audible? Am I audible? Kindly बता दें. आप स्टार्ट करें. हो करम सरकार अब तो हो गए हम बेशुमार. हो करम सरकार अब तो हो गए हम बेशुमार. हो करम सरकार अब तो हो गए हम बेशुमार. हो करम सरकार अब तो हो गए हम बेशुमार. जानो दिल तुम पर फिदा ए दो जहां के ताजदार. जानो दिल तुम पर फिदा ए दो जहां के ताजदार. हो करम सरकार अब तो हो गए हम बेशुमार. मैं अकेला और मसाइल जिंदगी के बेशुमार. मैं अकेला और मसाइल जिंदगी के बेशुमार. आप ही कुछ कीजिए ना ऐश है आली वकार. आप ही कुछ कीजिए ना ऐश है आली वकार. हो
करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार। या रसूल अल्लाह सुन लीजिए मेरी फरियाद को, या रसूल अल्लाह सुन लीजिए मेरी फरियाद को। कौन है जो के सुने तेरे सिवा मेरी पुकार। कौन है जो के सुने तेरे सिवा मेरी पुकार। हो करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार। याद आता है तवाफ़े खानाए काबा मुझे, याद आता है तवाफ़े खानाए काबा मुझे, और लिपटना मुल्तज़म से वालिहाना बार बार, और लिपटना मुल्तज़म से वालिहाना बार बार। हो करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार। गुम्बदे खज़रा के जलवे और वो इफ्तारियां, गुम्बदे खज़रा के जलवे और वो इफ्तारियां याद आती है बहुत रमजान तैबा की बहार। याद आती है बहुत रमजान तैबा की बहार। हो करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार। हो करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार, गम बेशुमार। जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह। Now I would like to call फिज़ा रफ़ीक, वो आए और अपनी आवाज़ से हमारे दिलों को अक़ीदत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुनव्वर फरमाएं। मेरे ख्याल से फिज़ा रफ़ीक का नेट इशू हो गया है। हम इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। जज़ाकल्लाह फिज़ा रफ़ीक। 14th August 1947 was the day when the sun of hope's rising and the whole sky got brightened with its grace. It commemorates the day when Pakistan achieved independence and was declared as a sovereign state. The day was the start of the morning that is never going to fade its color, because this morning contains the blood of millions of innocent people
who sacrificed themselves to add up bright colors to the leftover lives and made our life comfortable today. We have gotten independence not only to live free and to perform religious activities, but we have gotten Pakistan to tell the whole world that we have our separate identity, to teach the lesson throughout the globe that Pakistani people have worked to do everything, and no one can undo Pakistan and his nation. This is our Pakistan. This belongs to us. We belong to him. For keeping this spirit alive in our hearts, Pakistan Rising Stars on Independence Day organized the Milli Song and Speech competition, namely PRS Voice of Pakistan Milli Song and Speech Contest, जिसमें मुल्क भर के हर तबके से ताल्लुक रखने वाले ने हिस्सा लिया। कहीं मिली नगमे गा के अकीदत का इजहार किया गया तो कहीं बैतबाजी से। So continuing this all again, I would like to call मामूना मुर्तजा कि वो हमें अपनी आवाज में प्यारा सा मिली नगमा सुना दें और पाकिस्तान से अकीदत का जज्बा दोबारा जगा दें। Thank you so very much for calling me, Maria. Assalamu alaikum everyone. मैं मुना मुर्तजा है from हिमिया खान और एक मेरी नगमा है बहुत प्यारा मैडम नैयरा नूर का जो बेसिकली 1985 में रिलीज हुआ था वतन की मिट्टी गवाह रहना। तो आई डिसाइडेड टू सिंग हियर। अगर मेरी आवाज में डिस्टॉर्शन हो तो काइंडली इन्फॉर्म मी मरियम। शुड आई कंटिन्यू? Yes ma'am, you can. Okay, thank you. वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना, वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना, वतन की मिट्टी अजीम है तो अजीम तर हम बना रहे हैं, गवाह रहना, वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना, तेरी ज़मीं के ये चाँद तारे हैं जिनकी आँखों में प्यार तेरा, सदा ताकतों के दिए जलाकर बढ़ा रहे हैं वकार तेरा, गवाह रहना, वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। थैंक यू। बहुत उम्दा, बहुत खूब मामूना पे उतरे। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो, आमीन। पाकिस्तान से अकीदत का इज़हार मिली नगमों के साथ साथ बेतबाजी से भी किया जा सकता है और इसी के लिए मैं हुरिया शुमैल को दावत देना चाहूंगी कि वो अपने कुछ ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें खुदाए लम यज़ल के लिए जो हर इब्तिदा की इब्तिदा और हर इंतहा के इंतहा है, और दुरूद व सलाम हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आले पाक पर। सुना है कि कोई जिना आया है, सुना है कि उसने कोई पाकिस्तान बनाया है, सुना है कि कोई वकील हक व इंसाफ की जद्दोजहद करते करते एक ऐसा अदालती निज़ाम बनाना चाहता है जहां कानून खुदा की किताब होगी।
सुना है कि गरीब को इंसाफ मिलेगा। ये भी सुना है कि वहां कोई माँ अपने जवान बेटे के कातिल को ये कहकर माफ नहीं करेगी कि मेरी 2 जवान बेटियां भी जिंदा हैं। सुना है कि अरशद अपने 6 माह के बच्चे को ये कहकर नहीं मारेगा कि शायद उसकी बीवी इस तरह उसकी बात माने। सुना है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान से अलग होने जा रहा है। सुना है कि एक पाकिस्तान बनने लगा है। सुना है कि पाकिस्तान में जिन्ना ने अदलो इंसाफ की सच्चाई की एक बुनियाद रखी है। ये भी सुना है कि मुसलमान एक अल्लाह, एक रसूल और एक किताब पर यकजा होने लगे हैं। सुना है कि तमाम आलम इस्लाम के लोग पढ़ लिख कर एक ऐसा मुल्क बनाने लगे हैं जो सिर्फ अदलो इंसाफ की बुनियाद पर कायम किया जाएगा। मगर ये सारी बातें सुनी सुनाई मालूम होती हैं। ऐसा लगता है कि सब किसी ने मजाक किया हो। जनाबे आला, ये मुल्क वो मुल्क जहां दुनिया में इतने मजहब नहीं मिलेंगे मगर मजहबी जमातें मिलेंगी। दुनिया में शायद इतने मारूफ सियासतदान न गुजरे हो मगर यहाँ पे सियासी जमातें मिलेंगी। ये पाकिस्तान वो पाकिस्तान जो कायम है और कायम रहेगा। सुना है कि 2 कौमी नजरिए की बुनियाद पर एक महान हिंदुस्तान टूट कर रह गया था। सलाम कीजिए ना इस पाकिस्तान को जहां 22 करोड़ में से फर्द का अपना अपना नजरिया है मगर पाकिस्तान तो कायम है। मैंने बाबा से सवाल किया, बाबा हम किसकी गुलामी से आजाद हुए थे? आखिर कौन लोग थे जिन्होंने हमें गुलाम बना रखा था? कहने लगे कुछ अंग्रेज थे जो बाहर से आए थे, अपना ओढ़ना बिछोना अपनी तहजीब लाए थे, घर अपना था, दुकानें उनकी थी, बोलते हम थे, जबानें उनकी थी। मैंने कहा ये तो आज भी है, घर अपना है, जबानें उनकी है, हम तो फकत गुलाम हैं, दुकानें उनकी हैं। उन्हीं की तहजीब का राज है बाबा, बदला तो कुछ नहीं। एक मर्तबा नजर मोड़ी और कहने लगे वो हम पे जुल्म करते थे, कोई रोकने वाला ना था, वो हमारा माल चुराते थे, कोई टोकने वाला ना था। मैंने कहा बाबा आज का चोर आपके अखबार की सुर्खी में, खबर में, खबरनामे में आता है, अब तो आपका सियासतदान पनामे में आता है। मेरे 60 साल बाप को पाकिस्तानियत का जज्बा सूझा और 70 साल बूढ़े मुल्क के बारे में जबान चलाता हुआ बर्दाश्त न कर सके। एक मर्तबा अलीगढ़ का खून खोला और कहने लगे ये जबान जो चल रही है ना बस यही चलाना आती है। वो कलम चलाते थे, तुम बस जबान चलाते हो। तुम किस दौर में भूले जाते हो कि हम कौन हैं? तुम किस गली में हो कि हम कौन हैं? हमें याद करो, हम मोहम्मद, अली, फातिमा के साए में इस मुल्क को सजाने वाले, हम इकबाल, हाली, अब्दुल हक के साए में इस मुल्क को बनाने वाले, हम अलीगढ़ से तहरीक को चलाने वाले। तुमने खोया है, तुम नहीं संभालोगे तो यही लोग आएंगे, इन्हें घर से नहीं निकालोगे तो यही घर को चलाएंगे। तुम किस वादी में रहते हो? तुम कैसे भूल गए कि ये खुदा का साया है? देखो इसे तोड़ने वाला आज भी आया है मगर इसमें खुदा का वो साया है कि ये कायम से कायम तक है। इसे बनाया है कायम रहने के लिए। दुनिया की तमाम फौज में सबसे अव्वलीन फौज तुम्हारी है। काबे पर जब भी हमला होता है फौज तुम्हारी जाती है। कश्मीर पर जब भी जुल्म होता है यहाँ से सवारी जाती है। तुम कैसे कहते हो तुम पीछे रह गए हो? तुम कैसे कहते हो तुम अधूरे रह गए हो? मत भूलो कि अब्दुल कदीर तुम में से है, हकीम सईद तुम में से है, गुलाम फरीदी तुम में से है, अमजद साबरी तुम में से है। अरे आशिके रसूल था, चूम कर रोजे की जालियां पढ़ता होगा। मुझे यकीन है अमजद आज भी जन्नत में कवालियां पढ़ता होगा। मैंने कहा बाबा आप सच कहते हैं? कहने लगे नहीं, तुम इब्ने रुश्द ही नहीं, तुम जाबिर भी, तुम किंदी भी, तुम इब्ने खल्दून तिबरी भी, तुम इब्ने सीना, इब्ने हैसम अल-बैरूनी तुसी भी, तुम शायरी में शिराजी हो, तुम नगरी में फिरदौसी हो, खयाल हो तुम निशापुरी के, तुम रोमी के मस्तवी हो, तुम सोज बने तो बुल्ले शाह, तुम सास बने तो वारिस शाह, तुम अक्ल बने तो शाह लतीफ, तुम वज्द बने, तुम रक्स बने, तुम सच्चल सरमस बने, तुम समंदर के गाजी हो, शहबाज हो तुम कलंदर के, तुम लिखने वाले पढ़ने वाले जलंधर के। तोड़ी है जंजीरें गुलामी की, तुम अब्दुल कलाम आजाद हो, आवाज से भी ललकार से भी बेखौफ हो, बेबाक हो। तुम इस मिट्टी के पाक रहने वाले हो, इस मिट्टी को सजाना है। बन गया तेरा पाकिस्तान और मेरा पाकिस्तान, अब जिनाह का पाकिस्तान बनाना है। बहुत शुक्रिया। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। हुरिया शुमैर, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे, आपकी
इल्म में मज़ीद इजाफा करे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। We appreciate all the contestants who took part in the season of competition. All were talented, mashallah. It was actually very tough to choose the best among all. Held highly appreciation from PRS to all the participants. Now moving towards the announcement of position holders for Milli Song Contest. So the person who stood first is Mamuna Murtaza. She has gotten first position. The person with the second position is Ahmed Nazir. And at last we have Ikra Zainab with the third position in the Milli Song competition. Heartiest congratulations to all three of you. Now moving towards the speech contest position holders, we have Ushna Afzal with first position, Bushra Server with second position, and Muhammad Sanaullah Hashmi with third position. Many congratulations, aap तीनों को. I will be pleased to call Syed Hasib Haider, the judge of speech contest, to share his wise views about the whole contest and about the performances the stars of Pakistan presented. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी मरीम, क्या आप बता सकती हैं कि मेरी आपको आवाज आ रही है? Yes, sir, आपकी आवाज आ रही है. सबसे पहले तो मैं हमजा भाई, प्रेसिडेंट ऑफ पीआरएस, उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। दैट वाज वेरी एक्सीलेंट शो जो आपने करा लिया, और काफ़ी अच्छा आपका सारा इंतज़ाम रहा और काफ़ी सक्सेसफुली आपने इवेंट करा दिया। एंड दूसरी बात, काफ़ी गलतियाँ थी। सबसे पहले तो शो से बात करें तो इंसान गलतियों से ही सीखता है, और हमारे सेशन का मेन मकसद भी यही है कि जो गलतियां हैं हम उनको दूर कर सकें और उनसे सीख सकें। तो सबसे पहले ये तकरीर का मुकाबला था, बैतबाजी नहीं थी। ये एक बात जो मेरे जहन में अभी आई, मैं सुन रहा था। उसके बाद हमारे स्पीकर्स, हमारे पास बहुत अच्छा टैलेंट उजागर हुआ। यानी कोरोना की वजह से, इस वबा की वजह से बहुत सारे लोग जो घर में बिल्कुल फंसे हुए हैं और बड़ी मजबूरियों में हैं और बड़े अजीब हालत में हैं, और इस दौर में, इस वक्त में इतना आपने ये अच्छा स्टेप लिया, एक ऑनलाइन कंपटीशन जो आपने स्टार्ट किया, तो बहुत अच्छा था। मेरे पास कुछ गलतियां लिखी हुई, इंडिविजुअल भी मैंने बंदों की लिखी है ताकि उनको बताई जा सके और वो बेहतर हो सके। तो मैं जनरली बता देता हूँ। पहले एक बात के, जब भी स्पीच जो जनरल मैं बता रहा हूँ, ये उर्दू तकरीर का मुकाबला था, तो इसमें जो भी इंग्लिश स्पीच सुनाएगा या कुछ उस तरह सुनाएगा तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ये मेन असूल होते हैं तकरीर के मुकाबले के। और इसमें एक इंग्लिश में थे, देयर कंटेंट वाज ऑसम, उनका कंटेंट बहुत अच्छा था, उनकी अदायगी भी बेहतर थी, यानी उनकी प्रोनाउंसिएशन ठीक थी। और एक और किसी और लैंग्वेज में तो वो तो मुझे समझ भी नहीं लगी। उसके अलावा जो मेन चीज़ नज़र आई कि हम अमूमन लोग क्या करते हैं, हम करते हैं कि जो कंटेंट होता है वो कंटेंट कभी इधर से कॉपी किया, कभी उधर से कॉपी किया, और उस पे हम एक स्पीच कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ टिप्स दूं तो, स्पीच जब तक लिखने नहीं आएगी, तो जब तक स्पीच इंसान को लिखने नहीं आती, तो इंसान अच्छा स्पीकर नहीं बन सकता। किसी और की लिखी हुई स्पीच और कॉपी की हुई स्पीच पे हम उस तरह शुरू आगाज तो कर सकते हैं, लेकिन फॉर बिकमिंग अ गुड स्पीकर वी नीड टू राइट अ स्पीच और ऑन सेल्फ। तो उसके लिए सबसे पहले इंसान जब तक ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़ेगा, तो बुक्स बहुत हैं, लेकिन मैं आपको एक मशवरा और एक ऐसे, क्योंकि आज एक लगा हुआ है, महफिल लगी हुई है कि जिसमें हम सीख सकते हैं, तो ट्राई टू रीड वासिफ अली वासिफ। उनके आप अगर उनके बुक्स पढ़ें, कलम से या बात से बात, और इस तरह का काफ़ी मुख्तलिफ बुक्स हैं, तो उसमें वो कुछ ऐसी हैं, शॉर्ट स्टोरीज हैं, कुछ क्या है, लेकिन उससे आप बहुत कुछ उससे सीखते हैं और बहुत कुछ लिख सकते हैं। और बाकी दूसरी बात, अदायगी का एक मसला नज़र आया, और एक थे यहाँ 4 नंबर जिनका था, जिनकी यानी 4 नंबर स्पीच थी,
क्योंकि मेरे पास मैंने नंबर के हिसाब से मार्किंग किया, नाम मेरे पास मैं उस टाइम नोट नहीं कर सका। तो हमारे पास पाकिस्तान का ब्राइटर एस्पेक्ट भी है, पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है। वी शुड नॉट इवन वी शुड नॉट ऑलवेज वॉच अ नेगेटिव साइड। हमें नेगेटिव साइड हमेशा नहीं देखनी चाहिए, हम पॉजिटिव साइड को भी देखेंगे तो तब ही हम अपना, क्योंकि पीआरएस का तो मकसद ही ये है कि हम पॉजिटिव इमेज शो करें। तो स्पीचेस में नेगेटिव चीजें होती हैं, लेकिन पूरी स्पीच को नेगेटिव कर देना, इट लीव्स अ रॉन्ग इम्पैक्ट। और आवाज में क्लैरिटी लाना बहुत जरूरी है। जब तक आवाज में क्लैरिटी नहीं है तो हम उस तरह नहीं, हमारे उस बात का कोई फायदा नहीं है। और उसके अलावा जो स्पीच में मेन चीज स्पीच की जिसे जान कहा जाता है वो होता है शेर, अशार। तो जब तक इन शेर की अदायगी ठीक नहीं होगी या शेर को हम सही तरीके से उसके तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो फिर वो खुद ही स्पीच बैठ जाएगी। और ये कुछ पॉइंट्स थे, बाकी ऐसे इंडिविजुअल भी मेरे पास हैं, अगर किसी अपना पूछना चाहता है वो नंबर वगैरह बताएं तो मैं उसको बता दूंगा। तो बाकी क्योंकि सर आज 14 अगस्त नंबर 3 में पूछना चाह रहा था कि डिक्लेमेशन के अकॉर्डिंग ही तो थी, मतलब रिजल्ट तो जजेस के ही हाथ में होते हैं, बट मुझे वो थोड़ी सी एक हुई है डिसअपॉइंटमेंट, जी मतलब जी आवाज की भी एक क्लैरिटी नहीं थी अगर हम फर्स्ट पोजीशन को देखें, या इनफैक्ट फर्स्ट पोजीशन का जो आप खुद बात कर रहे हैं कि इंग्लिश का वर्ड है तो वो इंक्लूड ही नहीं होगा, तो स्टार्ट ही मतलब मैं सीखना चाह मैं रहा था। आपकी बात को कट करूंगा इधर। सिर्फ 50% जजमेंट क्राइटेरिया था, 50% वोटिंग का क्राइटेरिया था। उनका जी जो सर। वोटिंग का क्राइटेरिया था वो 50% कंप्लीट हुआ था। उनके जजमेंट में सबसे कम नंबर हैं उनके, जिनकी आप बात कर रहे हैं फर्स्ट पोजीशन की, उनके जजमेंट में है 32% और आपके हैं 44 आई थिंक या 45%। तो इस हवाले से ये पॉइंट नहीं बनता आपका रेस करने का। हमजा भाई, बीच में मैं बोलना चाहूंगा कि बेसिकली इंसान अगर हम अपनी पोजीशंस का मकसद कर लेंगे ना तो हम सीखेंगे नहीं। आपका नंबर आप बताएं ताकि मैं आपको अपनी गलतियां, आई थिंक मेरे पास जो नंबर आए हैं वो 4 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो अगर आपकी फर्स्ट थी तो आपका 4 होना चाहिए। तो मैं एक सेकंड आपको बताता हूँ। पहली चीज जो 4 नंबर था उसमें मैंने एक बात की, तो उसमें क्लैरिटी नहीं थी, आवाज उसकी क्लियर नहीं थी। शायद कि ये माइक का इशू हुआ हो या जो भी इशू हुआ हो, तो मुझे आवाज क्लियर नहीं थी। तो जजमेंट में ये बड़ा मसला होता है और बड़ी मेन बात होती है। दूसरी बात, जुमले की जब एंडिंग करते हैं ना स्पीच में, फॉर एग्जाम्पल मैं एक बात कर रहा हूँ, एक शेर है कि जहान ख्वाब मेहरबान की खैर हो, तो अगर हम खैर हो आस्था बोलेंगे ना तो वो शेर समझ नहीं लगेगा अगले को और वो सारा खराब हो जाएगा। तो ये एक नेगेटिव बात होती है। दूसरी के 4 नंबर स्पीच, अब पता नहीं वो आपकी थी किसकी थी, लेकिन नेगेटिव थी कि जो मैंने पॉइंट किया वो इसी में मेरे पास लिखा हुआ है। उसके बाद थोड़ा सा शेर का मसला था और एंडिंग बेटर हो सकती थी, जो एंडिंग थी स्पीच की। इसके अलावा लेकिन आपके पॉइंट्स अच्छे थे जजमेंट के मुताबिक। आपकी क्यूरी क्लियर हुई है तो बता दें काइंडली। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। बस वो जो हमजा भाई बता रहे थे ना कि वो नगमा के लाइक्स पोजीशन और उस होल्ड बेस पे, के मार्क्स बता दें। लाइक्स और उस बेस पे भी देखा जाए तो उसमें भी मैं सेकंड स्टूड कर रहा था, बट कोई मसला नहीं है। थैंक यू सो मच सर, सर दैट वाज आपके ना जो इंडीड कमेंट्स का ग्रेट मैनेज। पोर्शन था ना सनाउल्लाह, आप अपने कमेंट शेयर्स का पोर्शन देख लें, 46 शेयर्स हैं। 46 को आप 20% के हिसाब से देख लें कितने बनते हैं आपके। और चलें ठीक बाकी हो गया जो सर, कोई रिजल्ट मसला है, नहीं है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत जो मुबारक हो रिजल्ट आपको है इस ना, इवेंट पे, बहुत ज्यादा वेल हमजा मैनेज और वेल हमजा ऑर्गेनाइज सर, था। एक्सक्यूज मी। जो रिजल्ट है ना, किसी का 1% भी ऊपर नीचे नहीं है। पूरी कैलकुलेशन के साथ ना रिजल्ट आपके ग्रुप्स में शेयर कर दिया मैं जाएगा। एक किसी का इधर इनको 1% काट रहा का। हूँ, लेकिन एक बात इधर क्लियर करने के लिए कि आई वाज सो इम्प्रेस्ड कि इनका मुझे मैसेज आया था, हमजा जो प्रेसिडेंट है, कि हाफ पॉइंट भी किसी का अगर बनता है ना तो वो भी हमने आगे पीछे नहीं करा। यकीन माने मुझे उम्मीद है, जो इनकी बातों से मुझे लग रहा था कोई इधर इस तरह नहीं हुआ होगा और क्राइटेरिया पूरा उतरे, क्योंकि 50% जजमेंट थी, थोड़ी सी थी एक अजीब इस बार हुआ है ये क्योंकि स्पीचेस में इस तरह आई थिंक के नहीं होना चाहिए। आई कैन बी रॉन्ग, लेकिन जजमेंट में अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया कोई गलती नहीं हुई, इस बात की मैं भी आपको गारंटी दे सकता हूँ। जी, इसके अलावा किसी का स्पीच के हवाले से कोई क्वेश्चन है तो हसीब भाई इधर हैं, आप पूछ सकते हैं।
जी सर, आप मेरे नेगेटिव पॉइंट्स बता दें ताकि नेक्स्ट टाइम फिर मैं इस पे आपका तवज्जो दूं। काइंडली आप नंबर बता दें अपना, क्योंकि मेरे पास नंबर के अकॉर्डिंगली है। मतलब ये अगर आप बता सकें इनका नंबर। नहीं, नंबर तो मुझे याद नहीं होगा, मुझे सारी लिस्ट ओपन करनी पड़ेगी, इधर से मीटिंग फिर लेफ्ट हो जाएगी। आप मिनिमाइज करके ट्राई करें, क्योंकि मेरे पास वो नंबर नहीं है अभी। आपकी एंट्री नंबर कौन सी थी हुरिया? क्या दिए? नहीं आधी क्या है? ये पावा आई पावा तो बिछाई क्या ना। अहमद भाई आप अपना माइक ओपन करके किसी और से डिस्कस कर रहे हैं कुछ। इसके अलावा किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो ओवर टू होस्ट मरियम। काफी लंबी गुफ्तगू होगी, पर सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि इतना कीर इंटरेस्ट दिखाया इस पूरे कॉन्टेस्ट को लेके। In the end, I would like to thank all of you, all of the viewers viewing us. This whole ceremony became possible and successful just because of you all. Freedom in the mind, faith in the words, pride in our hearts, and memories in our souls. Let us salute the whole nation on this Independence Day. Long live Pakistan.